Okay, starting with question number 51 with reference to FDI in India, which of the following is considered its major characteristic? ठीक है, अब जैसे this is also one liner question, ठीक है, but you see you will be able to attempt this question using etymology, word association, etymology या 50-50, ठीक है. So it is the investment through capital instrument essentially in a listed company, ठीक है, but that is not the case, ठीक है, because non-listed companies can also raise funds using FDI. I hope you guys know that much. So one is wrong. All right. Then you have it is largely non-debt creating capital flow. So yes, FDI basically is non-debt. I hope you guys know that. ठीक है, क्योंकि यहां पर आपको कुछ कंपनी का परसेंटेज देना पड़ता है, मोर देन 10% होता है ना. क्रिएटिंग कैपिटल फ्लो, यस, पैसा मिलता है यहां से आपको. सो दिस इज द आंसर. और देख लो, इट इज अ इन्वेस्टमेंट, यस इट इज एन इन्वेस्टमेंट विच इन्वॉल्व्स डेट सर्विसिंग, नो नॉट नेसेसरी दैट. डेट सर्विसिंग का मतलब है कि एफडीआई के थ्रू आप जो है पुराने डेट को सर्विस कर रहे हो, बट दैट इज नॉट द केस. जनरली कैपिटल रेज करने के लिए आप एफडीआई लेके आते हो. You know, think about it. Why would someone give you money just to service the debt? That too, you know, in the name of FDI. सर्विसिंग ऑफ द डेट होती है लोन सर्विसिंग के थ्रू, बहुत सारे लोग करते हैं. आज भी बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिनके बारे में आजकल खबरें चल रही हैं, वो भी लोन सर्विसिंग कर रहे हैं. माल्या जी भी थे जिन्होंने किया. इट इज अ इन्वेस्टमेंट मेड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. इन्वेस्टमेंट मेड बाय द FIIs in the government security, no, ठीक है, that is not the case. So FII investing more than 10% in a company, if they are investing more than 10% in a company, then that is FDI. So it was an easy question. I would put it in the category of easy question. Simple definition. FDI has been the most important theme as far as UPSC is concerned. Every year you will see a question on this, directly indirectly. तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर एक कंपोनेंट होता है कैपिटल, उसके अंदर एक कंपोनेंट होता है एफडीआई. So you see, this was also that only, but the thing is that word association or basic understanding could have helped you. With reference to international trade of India at present, which of the following statements are correct? Okay. Merchandise exports are less than its merchandise imports. This is absolutely wrong. Basic balance of payment की understanding से you would be able to attempt this question. So under balance, so I have anyways mentioned this, that balance of payment is an important theme. So please guys go through balance of payment, और उसमें जो है foreign trade और forex और everything that comes under balance of payment is very very important. इस साल I'm expecting a question on capital account convertibility. Anyways, India's merchandise exports are less than, so बता दिया, this is, एक second, less than its imports. This is correct. Sorry, I'm so sorry. फिर से पढ़ लेते हैं, कंफ्यूज हो गया. Merchandise exports are less than merchandise imports. Yes, this is correct. We are in the deficit. ठीक है. India's imports of iron and steel, chemical, this have decreased in recent years. Okay. India's exports of services are more than imports of services. Yes, this is correct. Then India suffers from an overall trade current account deficit. तो 4 सही है, 3 और 4 सही है. आंसर इज डी. ठीक है. बट दिस क्वेश्चन वाज removed by UPSC. Removed तो नहीं बोलूंगा, dropped while calculating the score. Why it was dropped? क्योंकि ये 2020 के टाइम में this was the only time जब 2020 में हमारे जो है ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया था. We were in the surplus. We were in the current account surplus at back then. क्योंकि ये भी हमारे इम्पैक्ट हुए थे और स्टेटमेंट ये भी हमारा जो है गलत हो गया था. सो 1 and 4 जो है वो गलत हो गया था, तो इसीलिए जो है, बट ऐसा तो नहीं है कि हम 3 ओनली आंसर में लगा के और चेक कर देंगे कॉपीज, ऐसा तो नहीं होगा. सो दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वाज ड्रॉप्ड. द टर्म वेस्ट एक्सेस इंटरमीडिएट समटाइम्स फाउंड इन न्यूज रेफर्स टू ग्रेड ऑफ क्रूड ऑयल. So this was simple question.
और इसके लिए कोई आपको बहुत बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं थी, करंट अफेयर इंस्पायर्ड क्वेश्चन था, सीधा सीधा, ठीक है। आई रिमेंबर रीडिंग दिस इन द हिंदू जस्ट 2-3 months बिफोर प्रीलिम्स, क्योंकि 2-3 महीने पहले ही प्रीलिम्स से ये कुछ कोलैप्स हुआ था कोई कंपनी के अंदर, बिकॉज द कोविड ऑयल जो थी वो कंपनीज बर्बाद हो रही थी, तो उसमें ये आया था न्यूज़ में। नॉन फाइनेंशियल डेट इंक्लूड्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? Housing loans owned by households, amount outstanding on credit cards, treasury bills, all of them are non-financial debt. In India, why are some nuclear reactors kept under IAEA safeguards while others are not? Some use uranium, others use thorium, but that doesn't mean कि उसको आप safeguard के अंदर रखो. Some use imported uranium, others use domestic supply. That doesn't mean कि उसको आप उसके अंदर रखो. Then you have some are operated by foreign enterprise, other are operated by domestic. ये तो बिल्कुल ही गलत है. All are operated by state agencies. Then you have some are state owned, the other privately owned. ये भी गलत है. ठीक है. So which one of the following is the most correct answer ढूंढने की कोशिश करेंगे. ठीक है. क्योंकि सारे ही लगभग स्टेटमेंट गलत है. अब मोस्ट करेक्ट ढूंढने की कोशिश करेंगे. Some use thorium, others use thorium, some use uranium. बट दैट डजंट मीन कि आइए आके बोलने लग जाए तुमको. वो कोई गवर्नमेंट एजेंसी हो सकती थी, तो ये गलत हो गया. फिर बोले सम यूज इंपोर्टेड यूरेनियम एंड अदर्स यूज डोमेस्टिक सप्लाईज. ठीक है. अब इसके बेसिस पर क्या वो सेफगार्ड्स लगा सकते हैं? दैट इज द क्वेश्चन. ओके. सम आर ऑपरेटेड बाय फॉरेन एंटरप्राइज, अदर आर ऑपरेटेड बाय डोमेस्टिक एंटरप्राइज. तो ये तो गलत ही हो गया एब्सोल्युटली. स्टेट ओन अदर्स, ये भी गलत हो गया. अब दिस इज द ओनली मोस्ट करेक्ट आंसर. ठीक है. अब ये क्यों होगा? बिकॉज when you are importing uranium, or whether you are importing or not importing uranium, if you are using the uranium, so there is a very important process that happens जिसको हम बोलते हैं यूरेनियम एनरिचमेंट. ठीक है. ठीक है. तो यूरेनियम एनरिचमेंट के फिर वहां पे एक कॉन्सेप्ट आता है ग्रेड ऑफ यूरेनियम का. तो आप कौन से उसको आप जो है एनर्जी के लिए यूज कर रहे हो और कौन से को आप जो है वेपन के लिए यूज कर रहे हो. Because of that, this agency safeguard agreement sign करती है कंट्रीज के साथ. So because of that, some of the reactors, this agency has access to some of the reactors just to check कि हम जो है energy produce करने के लिए यूज कर रहे हैं. So because of that, B is the most appropriate answer here. Moving on, question 56. Trade related investment trends. Which of the following is correct? तो it was current affair inspired question first of all. WTO is an important theme also. तो यहाँ पे दो चीजें ओवरलैप हो रही हैं. एक तो ये न्यूज में भी था और दूसरा ये WTO थीम भी बहुत इंपॉर्टेंट है. Quantitative restrictions on imports by foreign investors are prohibited. Quantitative restrictions on imports by foreign investors are prohibited. They apply to investment measures related to trade in goods and services. They are not concerned with the regulation of foreign investment. How I attempted this? तो वही कि both वाले जनरली स्टेटमेंट गलत होते हैं. ठीक है. तो आई थॉट कि जो है ये गुड सर्विस पे नहीं होते होंगे. सो दैट इज हाउ आई अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन. तो ये स्टेटमेंट को मैं गलत मान के आंसर 1 and 3 निकाला. I didn't know about TRIMS at that point of time. सुना था कि TRIMS is under the WTO. This much I knew. I had this information knowledge with me, but I didn't know the details. ठीक है. तो मैं सीधा स्टेटमेंट 2 पे ही अटक गया कि maybe they are not in goods and services both. Maybe this is how examiner is manipulating the question. तो प्योरली गेस वर्क पे क्वेश्चन सॉल्व किया था मैंने. क्वेश्चन 56 एक्चुअल एग्जाम में भी. RBI decides to adopt an expansionist monetary policy, मतलब ज्यादा पंप करना चाहती है पैसे. Monetary policy expansionist है. Which of the following would not do? ठीक है. तो सोचो. I feel that this is such questions are easy questions. ये गलत होंगे तो मजा नहीं आएगा. Anyways, this is current affair क्योंकि तब किया गया था कोविड के टाइम में अपनी डिमांड को इंक्रीज करने के लिए. दूसरा, this is also an important theme. Monetary policy और RBI is an important theme. तो RBI या monetary policy से related questions you will if you will go through PYQs तो you will see कि बहुत questions इस theme से पूछते हैं. तो expansionist ज्यादा पैसा अपने को मार्केट में फैलाना है.
कट दी एंड ऑप्टिमाइज दी SLR। ठीक है, तो SLR का बेसिक मतलब ये होता है कि अगर बैंक के पास, अच्छा आई एम नॉट गोना एक्सप्लेन, चलो कर देता हूँ। 100 रुपए होते हैं तो उसका लेट्स से 30% SLR है, इसका मतलब 30 रुपए जो है बैंक को सिक्योरिटीज में रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर SLR आपने काट दिया, आपने बोला 15% है SLR, तो अब सिर्फ 15 रुपए रखना पड़ेगा। सो बैंक के पास पहले जो सिर्फ 70 और 10 रुपए, 10% और हटा लो इधर उधर, तो 60 रुपए जो अवेलेबल थे बैंक के पास लोन के लिए, अब 25 यानी 75 रुपए अवेलेबल होंगे, यानी कि वो मार्केट में 75 रुपीज दे कैन लैंड। ठीक है, सो दिस विल लीड टू एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, तो दिस इज पॉलिसी एक्सपेंशनरी, खत्म, आंसर इज बी। So that is how you could have solved this question. With reference to Indian economy after 1991 economic liberalization, consider following statement. ठीक है, and this is a very difficult question, but अब अपन जो है सिर्फ अपन अंडरस्टैंडिंग से सॉल्व कर सकते हैं इसको चाहे तो। ठीक है, 1991 से पहले की दुनिया कैसी थी वो थोड़ा आपको अगर अंडरस्टैंडिंग है, आई एम नॉट सेइंग तुम्हें हार्डकोर फैक्ट्स पता है, जस्ट दी अंडरस्टैंडिंग अगर आपको पता है तो यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। 1991 से पहले क्या चल रहा था वो अगर आपको पता है, हम एग्रीकल्चर में बस बैठे हुए थे, हमारी जो थी वो ज्यादा इंपोर्ट्स करते थे। ठीक है, हमारे पास जो है लेबर प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी। ठीक है, ये सारी चीजें थी। अब देखते हैं, वर्कर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज इन अर्बन एरियाज व्हाइल इट डिक्रीज इन रूरल एरियाज। अभी तो पता नहीं, छोड़ दो। The percentage share of rural areas in the workforce steadily increased. Now steadily तो कोई बढ़ता नहीं है। ठीक है, कोई भी चीज steadily इतनी आसानी से बढ़ती नहीं है। I hope you guys know, किसी भी इकोनॉमी में 95% चीजें steadily नहीं बढ़ेंगी। steadily का मतलब भी मैंने बताया था, steadily का मतलब होता है ये सिर्फ बढ़ती जा रही है। ठीक है, और एक होता है ओवरऑल इंक्रीज, यानी बीच में कहीं इंक्रीज डिक्रीज और फिर यहां से यहां तक आप ओवरऑल इंक्रीज हुई, बीच में आप गिरे भी, ये होता है स्टेडली का मतलब। लिटरल मीनिंग होता है कि आप लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। दैट डजंट हैपन इन इकोनॉमी। इतनी बड़ी इकोनॉमी में कैसे होगा? तो जनरली स्टेडली इंक्रीज तो बहुत ही इंपॉसिबल होता है। फिर भी आप सोचो कि रूरल एरियाज 1991 के बाद हम ज्यादा इकोनॉमी को, हम ज्यादा इंडस्ट्री सेंट्रिक बनाना चाहेंगे। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग कहाँ शिफ्ट हो रहे होंगे? रूरल से अर्बन एरियाज में जा रहे होंगे। ठीक है, तो ज्यादा वर्कफोर्स कहां पर प्रेजेंट होगी? मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सारी वर्कफोर्स उधर आ गई है, बट अगर पहले 70% वर्कफोर्स रूरल में रही होगी तो अब, और 30% अर्बन में रही होगी, तो ओवर द 3 डिकेड्स एटलीस्ट 40-42% लोग तो यहाँ पे आए होंगे। ठीक है, तो द परसेंटेज शुड हैव डिक्रीज्ड। अब ओवरऑल डिक्रीज हुई होगी, स्टेडली इंक्रीज डिक्रीज कुछ नहीं कह सकते, तो 2 गलत हो गया। रूरल एरियाज द ग्रोथ इन नॉन फार्म इकोनॉमी इंक्रीज्ड, तो ऑब्वियसली 1991 के बाद हम क्या कर रहे हैं? हम कोशिश कर रहे हैं मैकेनाइज करने की, हम कोशिश कर रहे हैं एसएचजीज खोलने की, जिससे कि हम नॉन फार्म कंस्ट्रक्शन कराओ, दुकान, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, व्हाटएवर वी कैन डू, बट दैट शुड बी नॉन फार्म। यही तो करने की कोशिश कर रहे हैं। दैट इज द होल एजेंडा ऑफ सो मेनी 5-year plans, isn't it? तो ये तो करेक्ट हो गया। द ग्रोथ रेट इन रूरल एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज्ड। ठीक है, कांट से, ठीक है, बट यहां पर इन्होंने ये तो बोला नहीं है कि स्टेडली डिक्रीज्ड या इंक्रीज्ड, बट यू सी दैट रूरल एम्प्लॉयमेंट जो है वो डिक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही है, ये नहीं पूछा है। ग्रोथ रेट इन दैट, ठीक है, सो ग्रोथ रेट इन रूरल एम्प्लॉयमेंट ऑब्वियसली नाउ इट हैज प्लेट्यूड, इसीलिए अब और ज्यादा माइग्रेशन हो रहे हैं। सो करेक्ट आंसर इज 3 and 4। और वैसे भी अगर एक इंक्रीज डिक्रीज का गलत होता है तो दूसरा सही होगा। ऑल्सो यहाँ पे आप देख सकते हो हाउ क्लेवरली here he used steadily, how cleverly he did not use steadily here, यानी कि एग्जामिनर ने इस स्टेटमेंट को गलत बनाया है और इस स्टेटमेंट को सही बनाया है। Moving on, that is how I actually attempted this question, got it correct. Question 59, in terms of short term credit delivery to agriculture, district central banks deliver more credit in comparison to scheduled commercial bank and regional rural banks, यानी SCBs और RRBs के कंपैरिजन में ज्यादा जो डेट दे रहे हैं वो DCCBs दे रहे हैं। दूसरा, one of the most important function is to provide funds to the PACs। ठीक है, नाउ अब मुझे ये था कि यार देखो, थिंक अबाउट इट, ये बंदा इन दोनों से ज्यादा कैसे फंड्स दे सकता है? अगर ऐसा हो ही रहा होता, ठीक है,
तो मैं आरआरबीज को क्यों सेटअप करता, या मैं बार बार क्यों बोलता कि यार तुम मेरे को जो है प्राइमरी वो दो, सॉरी प्रायर सेक्टर लैंडिंग करो, ठीक है। मैं बोलता हूँ आरआरबीज को 75% अपना पैसा जो है उसमें प्रायर सेक्टर लैंडिंग करो, उसमें एग्रीकल्चर को 20%। व्हाई वुड आई कीप दोज नॉर्म्स इफ दिस इज सफिशिएंट एंड इट इज सर्विसिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर? दैट मींस ये गलत स्टेटमेंट है, और वो भी दो से। दिस इज हाउ आई थॉट एंड दिस इज हाउ अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एससीबीज जो बहुत सारी है प्लस आरआरबी से ज्यादा कैसे दे सकता है, दोनों को कंबाइन करके। सो दैट इज रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है। और वन ऑफ द थिंग मैं अब देखो वन गलत है तो टू तो सही होगा, और इसमें कुछ गलत तो दे नहीं रखा है, ठीक है। दैट इज हाउ पैक्स आर गेटिंग फंड्स। आई एम नॉट सेइंग एससीबीज एंड आरआरबीज आर नॉट गिविंग फंड्स टू पैक्स, बट दे आर आल्सो गिविंग फंड्स, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। दैट इज हाउ आई अटेम्प्टेड दिस। द करेक्ट आंसर इज बी। दिस ईयर आल्सो आई फील दैट पैक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। प्लीज रीड मोर अबाउट देम, ठीक है। क्योंकि और आरआरबीज आर आल्सो इंपॉर्टेंट, बोथ ऑफ देम आर वेरी इंपॉर्टेंट दिस ईयर because both were in news, ठीक है, as simple as that। और बैंकिंग में अब उनको कुछ तो पूछना ही है, तो बैंकिंग में 3-4 ही क्वेश्चन बनने के आने के चांसेस हैं, और चारों क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ स्प्रिंट में। एक वो डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स वाला क्वेश्चन आएगा, एक पैक्स आरआरबीज में आएगा, और बता देंगे जब अपन प्रोजेक्शन निकालेंगे तो वही आएगा जो बताएंगे, टेंशन मत लो तुम। मूविंग ऑन। In India, under cyber insurance, which of the following benefits are generally covered in addition to payment for loss of funds and other benefits? तो basically cyber insurance में क्या क्या आता है? This is what they are asking. Cost of restoration of the computer system in case of malware disrupting. तो ये तो सही है, मालवेयर की वजह से आपका जो कुछ भी लॉस हुआ वो सब हम आपको देंगे, तो ये तो इंश्योर करना ही पड़ेगा ना आपको। कॉस्ट ऑफ न्यू कंप्यूटर इफ सम मिसक्रेंट बिल। अब ये देखो, आप हार्डवेयर टूटने के लिए कैसे दे सकते हो, ये साइबर इंश्योरेंस में थोड़ी आएगा, ठीक है। सो 2 शुड नॉट बी इन द आंसर, 2 चला गया, आंसर इज बी। सो क्वेश्चन इज टफ, ऊपर से देखने पे लगता है, बट व्हेन यू आर ट्राइंग टू अटेम्प्ट इट देन यू रियलाइज कि उतना टफ नहीं है। व्हाई वुड अंडर साइबर इंश्योरेंस समवन, some bank or some other financial institution will extend that facility of cyber insurance to you, ठीक है। क्यों करेगा वो? फिर तो आप तोड़ तोड़ के बार बार नया कंप्यूटर ही मंगाते रहोगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज पब्लिक इन्वेस्टमेंट? पब्लिक इन्वेस्टमेंट याद रखना इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट का बेसिक मतलब क्या होता है? आई होप यू गाइस नो। इन्वेस्टमेंट का बेसिक मतलब होता है that it should be creating something good, and और पब्लिक का मतलब पब्लिक कैरेक्टर का बनाना है उसको। फिक्सिंग एमएसपी फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ऑफ ऑल क्रॉप्स, रॉन्ग, ठीक है। ये तो क्या है? ये तो इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, सो 1 is gone, आंसर इज सी। लेट अस सी अदर ऑप्शंस आल्सो। कंप्यूटराइजेशन ऑफ, ये बिल्कुल सही बात है, बिकॉज यहां पर आप पब्लिक कैरेक्टर में कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो। सोशल कैपिटल डेवलपमेंट, यस। फ्री इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, नो, दिस इज सब्सिडी। सब्सिडीज आर नॉट इन्वेस्टमेंट, आई होप यू गाइस नो दिस। इन्वेस्टमेंट इज पार्ट ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर, सब्सिडीज इज पार्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वेवर ऑफ एग्रीकल्चर लोन्स, नो। सेटिंग अप कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी, यस। बेसिक अंडरस्टैंडिंग, that is what UPSC is looking for. Importance of the term IC coverage, so IC1 इस तरह की कुछ कंपनीज के बारे में इकोनॉमिक सर्वे 19-20 ने लिखा था, that is why this question came, ठीक है। तो आप इसमें परेशान मत हो ना, सॉरी 18-19 ने लिखा था, 1 साल पहले वाले ने, तो आप इसलिए परेशान मत हो ना कि भाई ये क्वेश्चन पूछा है तो हम सारे तरह के रेशियोज पढ़ने बैठ जाएं। Only if that is covered very nicely by economic survey then it becomes important। तो उस साल लिखा था तो it was not current but contemporary affair, ठीक है। IC1 कंपनीज, it helps, देखो इंटरेस्ट कवरेज, यानी आपने लोन लिया बैंक से, आपकी इतनी कमाई हो रही है कि आप उस इंटरेस्ट को कवर कर पा रहे हो कि नहीं। it helps in understanding the present risk of firm that bank is going to give loan to, तो कोई गलत नहीं है इसमें, ठीक है। it is a good thing, मतलब सीधा सीधा etymology या word association से I hope you guys can understand। It helps in evaluating the emerging risk of a firm that bank is going to give loan to। तो ये तो मतलब वही वाली बात हो गई, प्रेजेंट और इमर्जिंग रिस्क सेम स्टेटमेंट हो गए, यानी ये गया और ये गया। नाउ यू कैन हैव ए और यू कैन हैव डी,
ठीक है, द हायर अ बोरोइंग फर्म्स लेवल ऑफ इंटरेस्ट द वर्स इज एबिलिटी टू सर्विस इट डेट्स। नो, ठीक है, उल्टा कर दिया यहां पर, आंसर इज ए। एनपीए से रिलेटेड उन्होंने ये पूरा इकोनॉमिक सर्वे ने कवर किया था। Which of the following factors policies were affecting the price of rice in India in recent past? MSP, yes. Then you have government trading, yes. Government stockpiling, consumer subsidy. तो कौन नहीं करेगा? सभी करेंगे. All of them will affect you. The value of Indo-Sri Lanka trade has consistently increased. इन द लास्ट, तो मैं पहले भी बोला 95% टाइम ये क्या होता है, कंसिस्टेंट कुछ नहीं होता है, अप्स एंड डाउन्स आपने को देखने को मिलेंगे, ठीक है। दिस इज रॉन्ग, हो सकता है करेक्ट भी निकला है, बट 95% टाइम रॉन्ग होता है, तो रॉन्ग मान के चलते हैं। टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल आर्टिकल्स कंस्टिट्यूट एन इंपॉर्टेंट आइटम ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। तो आई होप दिस, तो यू नो, एवरीवन शुड नो दिस स्टेटमेंट। सो आंसर में 2 होना चाहिए। In the last 5 years, Nepal has been the largest trading partner to the outrightly wrong हो गया। नेपाल से तो ज्यादा obviously बांग्लादेश होगा। इतना बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए कि बांग्लादेश साउथ एशिया में बहुत बढ़िया इकोनॉमी बन के निकल रहा है। दिस होल थिंग वाज कवर्ड बाय इकोनॉमिक सर्वे 1819, जहां से वो IC1 वाला क्वेश्चन है वहीं से ये इन्होंने छापा है, ठीक है। सो द 3 गलत हो गया, सो दिस इज आल्सो गॉन। अब इसमें आपको चूज करना है। सो एज आई सेड दैट कंसिस्टेंट तो कुछ होता ही नहीं देश में, तो आंसर इज बी। So this was contemporary current affair, economic survey बोलूंगा, current affair भी नहीं बोलूंगा। So trade is an important theme. इस साल this theme would be repeated, याद रखना 2 साल से ये थीम पे क्वेश्चन नहीं आया, but this year you will see a question on this theme, trade वाला। लास्ट ईयर 2021 का जब हम पेपर डिस्कस कर रहे थे, तो आई होप यू रिमेम्बर वियतनाम के साथ हमने डिस्कशन किया था, क्योंकि वो इकोनॉमिक सर्वे ने कवर किया था। 2020 में साउथ एशिया के साथ कवर किया था, ठीक है। 2023 में किसके साथ कवर करेगा, दैट इज द क्वेश्चन। तो उसका आंसर आपको मिलेगा लास्ट ईयर की इकोनॉमिक सर्वे और इस साल की इकोनॉमिक सर्वे में। आप देखें कि इफ एट ऑल द इकोनॉमिक सर्वे हैज गिवन ड्यू इंपॉर्टेंस टू सच आई वुड से ट्रेंड्स और फैक्ट्स or themes, if they have given, then this is very important question for this year, and indeed they have given. Moving on, in which one of the following groups all 4 countries are members of G20? ठीक है, तो G20 पे क्वेश्चन इस साल भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा बेहतर, ठीक है। तो कौन कौन है आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, आई होप। मूविंग ऑन, अंडर द किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम शॉर्ट टर्म क्रेडिट सपोर्ट इज गिवन टू फार्मर्स। तो अब देखो इतना ही आपने आंसर कर दिया, ठीक है। एग्जामिनर ने जो 2 लाइंस दी है ना, इसी में आपका आंसर छुपा हुआ है। शॉर्ट टर्म यानी पहले आप ये देख लो कौन सा इसमें शॉर्ट टर्म है। वर्किंग कैपिटल फॉर मेंटेनेंस ऑफ फार्म असेट्स, परचेज ऑफ कंबाइंड हार्वेस्टर, ट्रैक्टर्स, मिनी ट्रक्स, कंजम्पशन रिक्वायरमेंट्स ऑफ फार्म हाउस होल्ड। तो आप यार एक बात बताओ, फार्म हाउस होल्ड के अंदर आप कंजम्पशन कराओगे क्या किसान क्रेडिट कार्ड से, ठीक है। करा सकते हैं, नहीं भी करा सकते, क्योंकि शॉर्ट टर्म की बात चल रही है। पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस, कंस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली हाउस एंड सेटिंग अप विलेज। अब ये देखो, ये शॉर्ट टर्म क्रेडिट कैसे हो सकता है? इट कांट बी शॉर्ट टर्म फैसिलिटी। करेक्ट आंसर इज बी, ठीक है। The weightage of food in CPI is higher than that in WPI. Okay, no idea. WPI does not capture changes in the price of services which CPI does. Okay, ये तो I hope this much मैं expect करता हूँ कि ज्यादातर लोगों को ये वाला डिफरेंस तो पता ही होता है, that WPI doesn't cover the changes in the price of services but CPI does, क्योंकि CPI में कंज्यूमर के रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं और WPI में होलसेल, दैट इज द मैन्युफैक्चरर्स के पर्सपेक्टिव से हम चीजों को देख रहे हैं। तो इसलिए इसमें CPI में ये चीज होती है और वहां पर नहीं होती है। तो आई होप मोस्ट ऑफ द पीपल नो दिस, द स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज नाउ अडॉप्टेड, ये गलत हो गया। 2016 के बाद से CPI हैज बिकम द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस इज गॉन। अब आपको चूज करना है बिटवीन 1, 2 एंड 2 ओनली। तो अब फिर हाउ आई थॉट
आई वाज लाइक कि यार सीपीआई में इतने सारे चेंजेस हम क्यों देखने को मिलते हैं, हेडलाइन इन्फ्लेशन क्यों देखने को मिलते हैं, ठीक है। फिर मैंने सोचा फूड जो है वो किसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंज्यूमर्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर लेट अस से होलसेल मतलब मैन्युफैक्चरर्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई वाज लाइक ऑब्वियसली कंज्यूमर्स के लिए। तो देन आई वाज लाइक इसका मतलब दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है, बिकॉज जब भी आप कोई इंडेक्स बनाओगे तो इट हैज टू बी रेलेवेंट टू दैट पर्टिकुलर सेक्टर, इजंट इट। तो फूड अगर कंज्यूमर के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फूड फ्यूल एक्सेट्रा, सो आई फील कि ये, और इससे हम हेडलाइन इन्फ्लेशन भी कैलकुलेट करते हैं, आरबीआई भी इसको यूज करिए, तो आई वाज लाइक कि हाँ फिर तो इसमें होना भी चाहिए, ठीक है। हो सकता है ऑन अ गिवन डे अगर खराब दिन हो तो कभी कभी ये अंडरस्टैंडिंग डिडक्शन और लॉजिक्स वाली चीजें गलत भी होती हैं, बट देन हाउ दैट इज हाउ इट इज कि आपको करना तो पड़ेगा ही, आप सब चीजें तो याद कर नहीं पाते, तो यू नो दिस अंडरस्टैंडिंग आर्ट ऑफ लॉजिक्स एंड डिडक्शंस भी आपको यूज करनी पड़ती है। रिवर फ्लोज इनटू मेकोंग अंडमान सी, थेम्स आयरिश सी, वोल्गा कैप्सियन सी, जाम्बेजी इंडियन ओशियन। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे याद थी क्योंकि ये न्यूज में थे, अब मुझे इनमें से कोई भी याद नहीं है, तो गाइस प्लीज सॉल्व इट, ठीक है। मेकोंग गंगा कोऑपरेशन जो है ये उस समय न्यूज में था, तो आई कैन से ये अंडमान सी तो नहीं होगा, सो वन आई कैन एलिमिनेट। उसके बाद अब क्या कर सकते हैं इसमें, जाम्बेजी आई एम नॉट श्योर, अरे यस यस जाम्बेजी इन इंडियन ओशियन ना, साउथ सॉरी कीनिया के आसपास के एरिया में जो है ये अफ्रीका में वो करती है। अभी तो क्वेश्चन बनाया था इस पे मैंने टीटीएस में, सो आंसर इज सी 3 and 4। In case of all cereals, pulses, and oil seeds, the procurement at minimum is unlimited in any state. ठीक है, all cereals unlimited in any, wrong, ठीक है, it just can't be true. इतने extreme words. In case of cereals, pulses, the MSP is fixed in any state at a level to which the market price will never rise. Extreme statements are wrong, 98%. Commercial paper is a short-term unsecured promissory note. Certificate of deposit is a long-term instrument issued by RBI to a corporation. Call money is a short-term used by interbank transactions. Zero coupon bonds are the interest-bearing short-term bonds issued by scheduled commercial banks to corporations. ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन इतना इजी है ना, आप बड़े आराम से कर सकते हो। रीड दिस स्टेटमेंट अगेन। Zero coupon bonds are the interest bearing short term bonds issued by the scheduled commercial banks to the corporation, ठीक है। सो आई होप यहीं से आंसर आ जाएगा एक तो, अच्छा नहीं आया, फिर देखते हैं। देन लुक एट दी सेकंड स्टेटमेंट। खैर आई होप 3 तो पता ही है आपको, कॉल मनी, नोटिस मनी, ये सब दीज आर ऑल्सो यूज्ड इन मॉनेटरी पॉलिसी, डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली, ठीक है। सो आंसर इज 1 and 3 एंड दिस इज अ शॉर्ट टर्म फाइनेंस। Then there is this kinds of following pairs. परिव्रजक, ठीक है, परि मतलब परे चले, मैं दैट इज हाउ आई सॉल्व, तो वो मैं बता रहा हूं, परे चले जाओ, व्राजक मतलब घूमते रहो, ठीक है, मतलब विराज मत करो कहीं पर भी, जस्ट कीप वॉन्डरिंग। दिस इज हाउ आई थॉट कि ये स्टेटमेंट करेक्टली मैच्ड है, ठीक है। उपासक नॉर्मल सा स्टेटमेंट था, ले फॉलोअर इन बुद्धिज्म, ठीक है। श्रावण वाज द ट्रेडिशन व्हिच क्वेश्चन द ब्राह्मण हेजेमनी, तो दिस वाज नॉट द केस, सो आंसर इज 1 and 3। अगर आप नहीं भी आता है, सिर्फ इतना भी आप, ये तो सब पढ़ते हैं, ठीक है, इट इज गिवन इन एनसीईआरटी हाउ जैनिज्म बुद्धिज्म केम इन द बीइंग, तो उसमें उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन था, सिंपल आसान सा क्वेश्चन है, ऑल्दो because of following with reference to Indian elephant, so it is a good question again. The leader of an elephant is female, but then it can be male also, पता नहीं, कह नहीं सकते अभी, ठीक है, it can easily be manipulated by the examiner. Then look at the maximum gestation period can be 22 months. It can be 14 months also. Who knows? An elephant can normally go on calving till the age of 40 years only. ठीक है, तो अब देखो only एक तो गलत आ गया इसमें, ठीक है। जनरली only वाले स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, गलत होते हैं। फिर 40 years, अब सोचो कि only कैसे कह सकते हैं, सारे एलिफेंट की अपनी जिंदगी है, ठीक है। और रफली वी से दैट 40 इयर्स तक हो सकता है, 38 तक हो सकता है, 35 तक, बट कोई एलिफेंट हो सकता है 42 तो भी चला जाए, सारे इंडिविजुअल, ठीक है। मैं अगर बोल दूं कि सारे इंडिविजुअल जो है 65 साल पे मर जाएंगे,
ये सारे इंडिविजुअल सिर्फ 60 साल तक ही वो कर सकते हैं, रिप्रोडक्टिव एज उनकी 60 साल पे खत्म हो जाती है, वी कांट से, ठीक है, सो दैट इज रॉन्ग। इतना लॉजिक तो आप लगा सकते हो। ऑल्सो देन देर इज ये अंडरस्टैंडिंग मैंने कई बार आपको बोली है कि अगर एक स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट, तीन, अगर दो स्टेटमेंट में सॉरी दो स्टेटमेंट्स में नंबर यूज कर रखे हैं तो एक स्टेटमेंट पक्का गलत होगा, दूसरा पक्का सही होगा। सो 3 इज रॉन्ग तो 2 इज करेक्ट, ठीक है। फिर भी अगर आपको नहीं पता है तो अमंग द स्टेट्स इन इंडिया द हाईएस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन इज इन कर्नाटका। दिस तो सबको पता होगा क्योंकि एलिफेंट सेंसस हुई थी बैक देन जब ये क्वेश्चन था। तो 4 को भी आप जो है गलत कर सकते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा 1 and 2। दैट इज हाउ आई अटेम्प्टेड, ठीक है। ये ऐसे कर सकते हैं। मैंने एक्चुअल में कैसे अटेम्प्ट किया था वो बताता हूँ। मैं यहाँ पे आया था सीधा, मैं ये तो मुझे पता ही था बिकॉज मेरे नोट्स में मैंने सेंसस को कवर कर रखा था। जो एनवायरमेंट की पीपीटी अभी मैंने अभी तक स्प्रिंट में नहीं दी है, ठीक है, जैसे ज्योग्राफी की दे दी है ना, ऐसे ही मेरी एनवायरमेंट की हुई है, ठीक है, विच आई शेयर वंस यू स्टार्ट एनवायरमेंट। तो उसमें सबसे पहला टॉपिक यही था, एलिफेंट सेंसस। तो मैंने सबसे पहले 4 को एलिमिनेट किया था, देन आई स्टार्टेड थिंकिंग आउट लाइक दिस। क्या मेरे पास 3 फैक्ट्स हैं, तो 3 फैक्ट्स में एक गलत हो सकता है, कम से कम 2 सही हो सकते हैं, ठीक है। देन आओ वो सारी कैलकुलेशन मैंने करी, फिर मैंने ये लॉजिक लगाया कि भाई ये कैसे हो सकता है कि नॉर्मली 40 इयर्स ओनली, नॉर्मली भी बोल रहा है, ओनली भी बोल रहा है, दैट जस्ट कांट हैपन। देन आई वाज लाइक आंसर इज ए। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 73, which of the following located in Kaveri basin? तो ये तो अगेन मेरे नोट्स में सही था, बट देन दिस वाज अ करंट अफेयर इंस्पायर्ड क्वेश्चन। तो आप सीधा सीधा बता सकते हो, पापीकोंडा, नागरहोले, सत्यमंगलम, वयनाड। तो आपको पता है इसमें से कौन सा सही नहीं है, एंड द आंसर इज 2 को हटा दो, सॉरी 3 को हटा दो, 2 को हटाओ। पापीकोंडा इज इन कावेरी, लाइज इन दी तमिलनाडु के ऊपर ऊपर, ठीक है। तो नागरहोले, पापीकोंडा, सत्यमंगल, वयनाड, ठीक है। अब क्योंकि इन्होंने कावेरी बेसिन बोला है, मैं तो रुक इसलिए गया क्योंकि मैं सिर्फ कावेरी सॉल्व कर रहा था, बेसिन बोला है तो यू हैव टू लुक एट दी अदर रिवर्स आल्सो। ये कावेरी और इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है, तो ये पूरा बेसिन है, ठीक है। ट्रिब्यूटरीज आल्सो कॉन्स्टिट्यूट दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। तो पापीकोंडा इसमें से हटा दो बिकॉज वो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में होने के ज्यादा चांसेस हैं एटिमोलॉजी लगा के। तो मैंने 2 को हटाया, देन आई वाज लाइक नागरहोले और सत्यमंगल तो आसपास है, दैट आंसर इज सी। हाउ आई न्यू कि सत्यमंगल और नागरहोले आसपास है, बिकॉज सत्यमंगल पहले भी पूछा जा चुका है पीवाईक्यूज में। तो आई ऑलरेडी रिसर्च ऑन सत्यमंगल बैक देन आई न्यू कि 1 और 3 आंसर में होने चाहिए। मूविंग ऑन, पापीकोंडा को मैंने एटिमोलॉजी से हटाया था कि इट इज, ऐसे सुनाई दे रहा है कि ये तो तेलुगु नेम है और बाकी सारे जो है वो तमिल नेम। आई एम नॉट, मैं वो गलत चीजें यहाँ पे बोल रहा हूँ। ऑल आई एम सेइंग इज कि दिस इज हाउ आई अटेम्प्टेड द क्वेश्चन with reference to India's biodiversity, this are, what are these? So I actually attempted in this, I think amphibians में मैंने टिक किया था, but the correct answer is bird, ठीक है। Which of the following protected areas is well known for the conservation of a subspecies of Indian swamp deer, Barasingha, that thrives well on the hard ground is exclusively। तो अब देखो ये अपने आप में ये यहां से एक नया क्वेश्चन बन सकता है, तो प्लीज रीड मोर ऑन दिस, ठीक है। फिर ये ग्रामीणी वोट्स क्या होते हैं, वो भी अपने आप में एक क्वेश्चन बन सकता है। द करेक्ट आंसर इज कान्हा नेशनल पार्क। इट वाज इन न्यूज, करंट अफेयर का क्वेश्चन था, इट वाज इन न्यूज, ठीक है। ऑल्दो इट वाज नॉट इन पीटी 365 दैट ईयर, आई रिमेंबर। तो आई ऑफन व्हेन आई एम रीडिंग पीटी 365 तो मैं खुद भी थोड़ा बहुत एडिशनल सर्च करता हूँ, तो जो एडिशनल सर्च करता हूँ फ्रंट पेज पे लिखता हूँ। So it was on my front page of PT 365 because of that. Steeg's leg can be material for which of the following? Construction of base road, improvement of agriculture soil, production of cement. अब देखो कैन बी एक तो, ठीक है। अगर कंस्ट्रक्शन ऑफ बेस रोड हो सकता है, अब स्टील स्लैग के अंदर बहुत सारे वो मटेरियल्स होंगे जो दे माइट एक्चुअली इंप्रूव द एग्रीकल्चर सॉइल। अब आप ऐसे सोचो कि हो सकता है इसके अंदर लेट्स से कोई ऐसा कंटेंट एक्स है जो, अब सॉइल भी तो 50 तरह की होती हैं, हो सकता है वो एक्स जो है किसी पर्टिकुलर सॉइल में नहीं पाया जाता, वहां यूज किया जा सकता है। तो इट कैन बी यूज्ड, इंप्रूवमेंट कैन बी यूज्ड बेस रोड, और जब रोड बना सकते हैं तो सीमेंट भी बना सकते हैं। 1, 2 and 3। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, which of the following are most likely places to find musk deer in its natural habitat? So this was again the same, जैसे उस वाले डियर को ढूंढा था ऐसे ही इसको। So this was also current affair inspired question but not in PT 365. This I also researched.
बट आई थिंक उनके अभ्यास में किसी में एक क्वेश्चन था इसमें से, मस्ट डियर आई थिंक उसमें था, बट नॉट इन दिस फॉर्म, इन सम अदर फॉर्म। बट पीटी में पक्का नहीं था, आई रिमेम्बर इट डिस्टिंक्टली। अब तो दे हैव इम्प्रूव्ड देयर पीटी एनीवेज। सो अस्कोट वाइल्ड लाइफ, गंगोत्री, किशनपुर, मानस, तो मस्ट डियर आर जनरली फाउंड इन दी उत्तराखंड और दी हिमालयाज में पाए जाते हैं। इतना भी अगर आपको पता होता तो आप ये कर पाते। तो यू वुड हैव एलिमिनेटेड 4, ठीक है, बिकॉज मानस इज इन उधर साइड में। तो आई डिड इट बिकॉज, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। देन आई वाज लाइक गंगोत्री में तो है, देन तो एनीवेज वो तो 2 आ ही रहा है। देन आई वाज कंफ्यूज्ड कि अस्कोट में होगा या किशनपुर में। देन फिर मैंने वापस दिमाग लगाया भाई कि क्योंकि गंगोत्री इज इन उत्तराखंड और किशनपुर जो है वो यूपी में बहुत दूर है गंगोत्री के, बट अस्कोट इज लाइकली टू बी इन द सराउंडिंग एरियाज, ठीक है। तो ये वाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क के आसपास कहीं हो सकती है, तो शायद पाया जाता हो। दैट इज हाउ अटेम्प्टेड आंसर इज ए। In the rural road construction, the use of which of the following preferred for ensuring environmental sustainability or to reduce carbon footprint? Reduce करना है, तो जैसे स्टील स्लैग हो सकता है वैसे कॉपर स्लैग हो सकता है पिछले वाले क्वेश्चन से। तो आंसर में 1 तो होना ही चाहिए। अगर कोल्ड है तो हॉट नहीं होगा, यानी दोनों में से एक हो सकता है। तो एक के साथ either I can have 2 और एक के साथ either I can have 4, then answer is A because I don't have 4, right? ठीक है, ऐसे ही है भाई, देखो ऐसे ही सॉल्व कर लिया। पोर्टलैंड सीमेंट, कोई भी सीमेंट कार्बन फुटप्रिंट्स को कम कैसे कर सकता है? इट कैन नेवर डू। तो 5 को ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हो तुम, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। और कल जो है इसका आखिरी सेशन पार्ट 4 अपन कवर करेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर।